Hello students, my previous lecture was on the use of mole concept in the solutions or relations of the concentration of solutions, and I have discussed about the concentration units of the solution. First was mass percentage, second was molarity, third was molality, and fourth was mole fraction. Let us again see the short formulas of these strengths. So first of all we take the mass percentage. What was mass percentage? Mass percentage was represented by percent W upon W, and it was mass of solute WB upon mass of solution WA plus WB into 100. This was the short formula for the mass percentage of solution. If you have to calculate the mass percentage of component B out of A and B, then mass of B upon total mass of solution into 100. This is the formula of mass percentage. Second was molarity, and I have told you that it is denoted by M. Molarity equal M. Molarity equal WB upon MB. WB mass of solute, MB molar mass of solute into volume in liter. Volume of solution in liter. If volume is in ml, then you can write this formula as WB into 1000 upon MB into volume in ml. This is the molarity. Third formula was molality. What is molality? It is the number of moles present in 1 kilogram solvent, and it is denoted by small m. So the formula becomes for m WB upon MB into WA mass of solvent in kilogram. If mass of solvent is given in gram, then you can convert into kilogram by dividing by 1000, and it becomes WB upon MB into WA in gram. This is the formula of molarity. Its unit is, what is units? Mole liter inverse. ये क्या है? Mole kg inverse. And fourth one was mole fraction, and I have told you about the mole fraction, that it is the ratio of number of moles of any component to the total number of all the components. If A and B are two components having moles Na and Nb, then mole fraction of A was Na, it is represented by Xa, and will be Na upon Na plus Nb, and mole fraction of B, this will be Xb, Nb upon Na plus Nb. One thing also to be noted here, that Xa plus Xb sum is always 1. The sum of the mole fractions of components is always 1. So if you calculate Xb, then Xa can be calculated as 1 minus Xb, or you calculated Xb, then Xa, then Xb equal 1 minus Xa. So this is important to note. And finally, there is a formula which shows the relation between molarity
relation between molarity molar mass and volume of solution molar mass comma mass of solute and volume of solution। मोलर मास मास सॉल्यूट का है, मोलैरिटी सॉल्यूशन की है और वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का है। तो एक डायरेक्ट फार्मूला आप नोट कर लीजिए, W इक्वल m डैश V अपॉन WB, यहां WB लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, वेयर W क्या है, WB मास ऑफ सॉल्यूट MB या MMB, इस तरह भी लिख सकते हो, MMB MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और V है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml। तो ये जो फॉर्मूला है, जब भी आपको मोलैरिटी मास और मोलर मास से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करनी हो तो इसको फार्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट में इसको हम फार्मूले को यूज कर लेते हैं। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ये फार्मूले जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करते हैं। तो ये क्वेश्चंस, इन फार्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको अब हम डिस्कस कर लें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 present in 100 centimeter cube of डेसीमोलर सॉल्यूशन। एक H2SO4 सॉल्यूशन है, कैसा है, डेसीमोलर है। इस डेसीमोलर सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है H2SO4 का। तो क्या क्या दे रखा है इसमें वो नोट कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन मोलैरिटी, डेसी का मतलब होता है 1/10, बताया था आपको। सेंटी का मतलब होता है 1/100 एंड मिली का होता है 1/1000। मोलैरिटी हो गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml। दिस इज द वॉल्यूम। मोलर मास ऑफ H2SO4, this is represented by m. You can calculate 2 into 1 plus 32 plus 4 into 16 equal 98. This is molar mass and you have to find mass WB। ये हो गया MB। WB आपको निकालना है। अभी अभी आपको फार्मूला रिलेशन बताया था, सिंस WB इक्वल MB V अपॉन 1000, M मास
m मोलर मास, w मास है, m मोलर मास है. व्हाट इज द मोलर मास? 98. Sorry, first of all you have to write the molarity 1/10. mb molar mass 98, volume 100 centimeter cube upon 1000. So this comes 0.98 gram. In this way you can calculate the mass of the substance present in solution of definite polarity and definite volume. तो इस तरह से आप ये वॉल्यूम दिया था, मोलैरिटी दी थी, आपने मास H2SO4 का निकाल लिया, कितना इसमें डिसॉल्व होगा. एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट. दूसरा क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH is dissolved in 200 centimeter cube of solution. Find molarity of solution. अगर 4 ग्राम NaOH 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व है तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी. तो पहले तो आप इसमें क्या क्या गिवन है वो देखिए. गिवन मास ऑफ NaOH Wb 4 ग्राम, वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब. You can calculate the molar mass of NaOH. Molar mass of NaOH. This will be Mb. This is solute. So molar mass of NaOH Mb. B for solute. M for molar mass. Na23 plus 1 plus 16 equal 40 gram mole inverse. You have to calculate molarity. आपने मोलैरिटी का फार्मूला पढ़ा है M इक्वल WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000. मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 4 ग्राम. मोलर मास इज गिवन. मोलर मास यू हैव कैलकुलेट 40. वॉल्यूम इज 200 सेंटीमीटर क्यूब into 1000. 5, 10. This becomes 0.5 n. In this way we can calculate the molarity mass of the solution. इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिए. फाइंड molarity and molality of 50% H2SO4. 50% ये परसेंटेज है बाई मास सॉल्यूशन. गिवन डेंसिटी of solution is 1.10 gram per centimeter cube.
ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिए, काफी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। 15% H2SO4 solution. What is mean by this? 15% H2SO4, 50% W upon W, mass by mass. Percentages of three types: mass by mass, volume by volume, and mass by volume. In your classes, we have discussed only about the mass by mass. Next classes, you will discuss about mass by volume and volume by volume. So, what is mean by 50% W upon W? That is, it means 15 gram H2SO4 is present in 100 gram of solution. That is 15 gram H2SO4 is dissolved or present in 100 gram of solution. It means mass of H2SO4 15 gram, mass of solution 100 ग्राम. सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 15 इक्वल 85 ग्राम. डेंसिटी डी इक्वल कितना दिया है? 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालनी है. मोलैरिटी निकालनी है. सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी. हाउ विल यू कैलकुलेट मोलैरिटी? मोलैरिटी का कैलकुलेशन कैसे चाहिए करेंगे? तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मोलैरिटी की कैलकुलेशन में क्या क्या हमें चाहिए होगा. तो सबसे पहले हमें इसके लिए मास WB चाहिए 15 ग्राम. पता चल गया. मोलर मास H2SO4 का कितना है? 98 ग्राम मोल इनवर्स. वॉल्यूम चाहिए. वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन. देखिए D इक्वल आपने पढ़ रखा है M अपॉन B. D इक्वल क्या पढ़ा है? M अपॉन B. डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम चाहिए तो ये हो जाएगा M अपॉन D. तो ये वॉल्यूम इक्वल मास है आपका 100, ये 1.1, ये आ जाएगा 90.91 सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गया वॉल्यूम. मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी इक्वल क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इज गिवन इन ml और सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 ml. यहां ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब. अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, है ना, और 1 सेंटीमीटर ऊंचा क्यूब बनाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को कहते हैं 1 ml. तो ये आ गया MB इंटू 1000. WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 15 ग्राम. मोलर मास आपका आया था 98. वॉल्यूम, वॉल्यूम आ रहा है आपका 90.91 अपॉन 1000. ये आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स. 15 अपॉन 98 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.153 इंटू 1000 अपॉन 90.91. जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 153 अपॉन 90.91. तो ये आपका आ जाएगा 153 अपॉन 90.91, और इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 1.68 m.
So this is the molarity of solution. In this way you can calculate the molarity of solution. Now you have to calculate second part, molality of solution. मोलैलिटी होती है स्मॉल m. इसके लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास चाहिए. ये आपका 15 ग्राम है. मोलर मास चाहिए, ये 98 है ग्राम मोल इनवर्स. मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए WA, दिस इज 85 ग्राम. निकालना आपको क्या है, मोलैलिटी निकालनी है. सिंस द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी इज WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट WA in gram into 1000. WB 15 gram, molar mass 98, WA mass 85. इसको अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था 0.153 इंटू 1000 अपॉन 85. ये हो जाएगा 153 अपॉन 85. ये लगभग आ जाएगा 1.8 m. In this way you can calculate the molarity of solution. तो इसको ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए. 15% H2SO4 दिया था. 15% का मतलब हो गया 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. जैसे आपका चीनी का शरबत बना हुआ है, वो 100 ग्राम है, उसमें 15 ग्राम चीनी डिसॉल्व है, तो कितना वाटर होगा, 100 ग्राम शरबत है, 15 ग्राम चीनी है, 15 ग्राम माइनस कर दें तो 85 ग्राम आपका वाटर आ जाएगा. तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल लिया. इसके बाद डेंसिटी डी थी, D इक्वल M अपॉन V, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम. इससे हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना चाहें तो डेंसिटी यहाँ आ जाएगी. इस तरह से हमने वॉल्यूम निकाल के मोलैलिटी निकाल ली, और मास सॉल्वेंट का था ही पता, उससे हमने निकाल ली मोलैलिटी. तो ये क्वेश्चन रहा आपका मोलैलिटी का. अब एक क्वेश्चन हम आपको और देने जा रहे हैं. इसको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको जो होमवर्क के लिए दे रहे हैं वो नोट कर लीजिए. क्वेश्चन है, ए शुगर सिरप एक शुगर सिरप है जिसका वेट दे रखा है 214.2 ग्राम. 214.2 ग्राम आपका शुगर सिरप है. इसमें कितनी शुगर है, कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर. व्हाट हैव find and calculate number first, मोलल कंसंट्रेशन. मोलल कंसंट्रेशन का मतलब हो गया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. नंबर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपको पता है क्या क्या दे रखा है. इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको मालूम है. मास ऑफ सॉल्यूशन ये है, मास ऑफ सॉल्यूट ये हो गया, इसमें से ये मास माइनस कर दें तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्वेंट वाटर होगा. मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, मोलैलिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूट 34.2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास शुगर का
फार्मूला होता है C12H22O11। जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो ये आ जाएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स। तो जब मोलैरिटी निकालेंगे तो 34.2 अपॉन 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा इंटू 1000। इस तरह से ये निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले शुगर के मोल्स निकालेंगे 34.2 अपॉन 342 1/10 आ जाएंगे। वाटर के निकालेंगे, वाटर का मास 180 ग्राम निकलेगा, 180 अपॉन 18 ये 10 मोल्स आ जाएंगे। शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, शुगर के नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 प्लस 0.1, देन यू गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन शुगर सिरप। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।